Shakespeare, you know Shakespeare, he lived in 15th, 16th century. He writes a full life of 3 scores and 10. Meaning in Europe, 3 scores and 10 is 70 years. That is the wisdom of India. See, when you say knowledge, knowledge means something that cannot be applied directly. But nothing in Indian systems is just knowledge. It is an applied knowledge, it is wisdom. है ना? See, for example, in South India, we celebrate Dasara just like you. But on Vijayadashmi, it is compulsory that everybody takes an oil bath. I think it is also the same in North India. Primarily because the cold season has just started. आपकी त्वचा फट रही है. Simple, I'm talking a very simple thing. So to maintain the balance of the skin from cracking, to protect it from the cold, apply oil. उससे बढ़ के कोई वो नहीं. Okay, you don't need to spend crores of rupees, lakhs of rupees on a spa or some treatment. 10 रुपये का तेल लगाओ गरम करके. So everything in the Bharat Tattva has been boiled down to a ritual. तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, सनातन हिंदू धर्म का जो लाइफस्टाइल है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक आवर फूड सिस्टम, जो 6 रस होते हैं, यू नो, कटु, तिक्ता, मधुरा, लवणा, all the rasas are given in our food, or only to that measure which is required. जैसे कटु होता है ना, कटु means pungent food. That is very little Black chutney. pepper. Little chutney is given, let us say. But you can eat more sweet, little more than that. So madhur ras is more. Okay. So that way, even your food, the way you consume, the taste is also, everything is defined. And how in the 4 Chaturmasa, rainy season, there is also something called Varjit food. What you must not eat. Right? Everybody, do you know, if you go to any foreign visit, in the hotel they will give you allergies column. पता है आपको? कहीं पे भी they will ask you for allergies. In India, nobody asks about allergies. सुना है कभी? Very rarely. If you go to a foreigner's house, first thing they'll ask you, what Are you allergic to? But in India, nobody does. Why? Because we know कि किसके साथ क्या चलता है. फॉर एग्जाम्पल, मच्छी खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए. यू नो दैट. एवरीबडी इन इंडिया नोज दिस. इजंट दिस पार्ट ऑफ आवर विजडम? वहां से लेकर के भारता, जिसका मतलब है भाव राग ताल, भावा रागा ताला, है ना. तो भारता itself is a symphony of wisdom and knowledge and life. It's a huge celebration. We dance, we sing, we eat good food, we wear good clothes, we express the best of the best, and we are happy about it. So, for all the youngsters who are here, Indian knowledge system, as you call it, or Bharata Tattva as I call it, is all about celebrating life. Looking at the beauty of life, not competing, not trying to outdo someone, but including everybody and having a blast. It's a huge big party. Look at your festivals. Deepavali is a party, Holi is a party, every festival is a big party in the name of the Lord. We have to embrace this and live, you know, celebrating every moment. तो गुरु कहते हैं, परोपकारस्य इदम शरीरम. तुम्हारा शरीर परोपकार के लिए बना है, दूसरे के उपकार के लिए बना है. सो यू कैन हेल्प अदर्स. अगर तुमको शिव तत्व मिल गया तो दूसरों को भी सिखाओ ना. आनंद अकेले लोगे? गिव इट टू अदर्स, शेयर इट. सो द भारत तत्व इज अबाउट शेयरिंग. इट इज अबाउट ट्रांसफरिंग द लव, द आनंदा, द नॉलेज टू समवन एल्स. इसीलिए हम जब दीपावली मनाते हैं तो एक दीप से दूसरे दीप जलाते हैं. पहले का कुछ गया? Did it lose something? What happened to the second one?
सेकेंड वन भी लाइट हो गया, इसमें भी रोशनी है, उसमें भी रोशनी है. Okay, spreading it. स्प्रेडिंग नॉलेज, स्प्रेडिंग विजडम एंड जॉय इज लाइक दीप से दीप जलाना. और ये आप भूल भी जाओगे कि ओरिजिनल दीप कौन सा था. सभी ओरिजिनल है, कोई इसमें कम नहीं है. लेकिन जब आप एक्सटर्नल पर्पस देखोगे तो आपको लगेगा उसका मैं दीप बुझा दूं. अपने पूर्णत्व के बारे में सोचो, दूसरे को नीचे दिखा के कोई फायदा नहीं. दिस इज अ शिफ्ट दैट मस्ट कम इन एवरी भारतीय सनातनी, कि मैं अपने पूर्णत्व के बारे में सोचूं, दूसरे को नीचे दिखा के नहीं, उसको आधा बता के मैं पूर्ण के तरफ नहीं जा सकता. आई कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय showing someone as small. You get that? So you should work towards your own completion. My own संप्रदाय, अपने परंपरा में, this I must share with youngsters. तो our संप्रदाय is based on agamas. आगमा मतलब ऊपर से नीचे जो आ रहा है. Considering that Shiva is the highest and out of himself, he himself becomes Shakti. कोई अलग नहीं है ना, वो नीचे है. लेकिन शक्ति इज अ फीमेल एंड अ फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वूम्ब. गर्भ होता है ना, जैसे आप मंदिर भी जाएंगे तो गर्भगृह में जाएंगे. भगवान कहाँ बिठाए हमने? गर्भगृह में बिठाए. किसका गर्भ है वो? वैसे लगता है ना, एक्चुअली आप ही का गर्भ है, क्योंकि शिव के सामने सभी स्त्री है ना. तो यू टेक द गुणा, यू टेक द क्वालिटीज ऑफ द भगवान, कोई भी हो, चाहे राम हो. राम के क्या गुण है? मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक वचनी है, एक वाणी है, मतलब एक तीर छोड़ा तो एक पत्नी व्रत है, कभी झूठ नहीं बोलता है, धर्मो विग्रहवान रामा है. ये सारे गुण को अपने गर्भ में डालो, स्त्री बन के जाओ, अपने गर्भ में डालो. ये सारे क्वालिटीज को मेरे क्वालिटीज से मिलाओ. जैसे आपके मम्मी ने आपके पिताजी से थोड़ा सा ही लिया वीर्य, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट लाइफ दे दिया गर्भ में डाल के, अपना भी थोड़ा मिलाया. तो स्त्री थोड़ा सा लेती है पुरुष से और बहुत कुछ बना देती है उसका. तो जो भी भक्त मंदिर में जा रहा है उसको स्त्री बन के जाना चाहिए. और वहां पे जो गर्भगृह में बैठे हैं देवता, उसका गुण अपने गर्भ में डालना चाहिए. तो आगम शास्त्र में क्या होता है, शिव और शक्ति एक दोनों से एकदम प्यार में स्वीटली बातें करेंगे. ये गुरु शिष्य भी नहीं है, ये लवर्स हैं. तो आप जब जाएंगे अपने भगवान के पास, आप जब जाएंगे अपने गुरु के पास, तो लवर बन के जाइए. ये कोई डांट के फटार के सिखाने वाली चीजें नहीं है, ये प्यार में बोलने वाली चीजें. और उसी में वो ट्रांसफर, इसको हम कहते हैं शक्तिपात, उसी उसमें शक्तिपात हो जाता है. कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऊंचा नीचा सोचने की जरूरत नहीं है. बस एक स्त्री का गर्भ लेके जाइए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. अच्छा, ये अब आप बोलोगे, अरे गुरुनाथ जी आपने ये सब बोल दिया, आपने फिर भारत के क्षत्रियों को नपुंसक बना दिया, तो है ना, ये क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा है. तो उसका मैं उत्तर देता हूं कि सबसे बड़े क्षत्रिय, सबसे बड़े योद्धा अर्जुन थे. अर्जुन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन क्षत्रिय. वो भी बिकॉज ऑफ भारत तत्व एक जगह पे जाके रुक जाता, कहता है कृष्ण भगवान मैं नहीं कर सकता युद्ध. उसके बाद आप भगवत गीता पढ़िए, पहले भारत तत्व को समझिए. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट भारत तत्व इज, बिकम कंपैशनेट and become the best soldier in the world, the best warrior in the world. And then when you feel I cannot do the war, I cannot fight, then remember Bhagavad Gita कि मूर्ख तू क्या मारेगा, मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है. That is when Bhagavad Gita should be brought in and the कर्तृत्व handed over to Krishna. मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं माध्यम हूं, तुम करो जो करना है. ये नपुंसक नहीं बना रहा है, ये आपको द्वेष से बाहर रख रहा है. आपकी क्वालिटी बेस्ट रहेगी. आई एम नॉट हेटिंग एनीबडी. जरूरत पड़ी धर्म की रक्षा करनी है, अच्छे तरीके से करेंगे.